Good morning, children. In previous class we discussed about frogs, fishes and reptiles. Now our today's topic is reproduction by giving birth to young ones. Some animals do not lay eggs. Instead, they give birth to babies. These babies resemble their parents. Such animals are called mammals. Cats, bats, dogs, monkeys, horses, elephants, lions, whales, human beings, etc. are mammals. Most baby mammals grow inside their mother until they are born. Mammals have hair on their bodies. They produce milk to feed their babies until they are old enough to eat the other foods. Some mammals such as whales and dolphins live in water. They do not have hair on their bodies. There are some animals which do not lay eggs. Instead, they give birth to young ones. These babies resemble their parents. Such animals are called mammals. Mammals which give birth to young ones are called mammals. Cats, bats, dogs, monkeys, horses, elephants, lions, whales, human beings are mammals. Most baby animals grow inside their mother's body until they are born. Okay? Mammals have hair on their body. These mothers produce milk to feed their babies until they are old enough to eat other food. Some mammals such as whale and dolphin, they live in water, and these whales and dolphins do not have hairs on their bodies. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग अंडे नहीं देते हैं, इंस्टेड वे छोटे बच्चे को जन्म देते हैं. जो एनिमल्स छोटे बच्चे को जन्म देते हैं और वे अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, मतलब अपने पेरेंट के जैसे दिखते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं मैमल्स. मैमल्स क्या हैं? जो मैमल्स आर दोज एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस. These mammals resemble their parent. वे अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं. ठीक है? कौन कौन से मैमल्स होते हैं? बहुत सारे मैमल्स हैं इस वर्ल्ड में, जैसे कैट्स हैं, डॉग्स हैं, एलिफेंट्स, वेल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब मैमल्स हैं. ठीक है? इन मैमल्स में जो इनका जो बेबी है वो मदर के बॉडी के अंदर ही ग्रो करता है, जब तक कि वो बाहर जब तक कि उसमें लिम्स नहीं आ जाते, हेयर आईज नहीं आ जाते हैं, मतलब जब तक कि वो पूरी तरह से बन नहीं जाता है बेबी, तब तक वो माँ के शरीर के अंदर ही बेबी बनता है. ठीक है? इन मैमल्स की एक खूबी क्या है? सबसे बड़ी खूबी वो है कि इन मैमल्स के हेयर होते हैं. मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज. उनके शरीर में फर या हेयर होते हैं. ठीक है? ये मैमल्स के जो मदर हैं वे तब तक मिल्क देती हैं अपने बच्चे को, तब तक मिल्क पिलाती हैं जब तक कि बच्चा कोई और खाना खाने लायक ना हो जाए. जब तक कोई बच्चा कोई और खाना ना खा सके, खाने लायक ना हो जाए, तब तक ये अपने बेबी को फीड करती हैं, मतलब अपने बेबी को अपना दूध पिलाती हैं. ठीक है? कुछ मैमल्स जैसे कि व्हेल और डॉल्फिन ये पानी में रहते हैं और इनके शरीर में हेयर्स भी नहीं होते हैं. ओके? I am going to read fact. The pistol shrimp is one of the loudest animals on earth, also known as the snapping shrimp. It is only 3 to 5 centimeter long but can produce sound louder than a jet engine. पिस्टल श्रिम्प एक तरह का झींगा होता है जो इतनी तेज आवाज निकालता है कि जेट इंजन से भी उसकी आवाज ज्यादा होती है. ठीक है? इसे स्नैपिंग श्रिम्प भी बोलते हैं क्योंकि वो झपट्टा मार के भी अपने शिकार को ले लेता है और 3 से 5 सेंटीमीटर ही लंबा होता है, लेकिन ये इतनी तेज आवाज निकालता है कि जेट इंजन से भी इसको मात दे दे, मतलब उससे भी ज्यादा तेज आवाज निकालता है पिस्टल श्रिम्प. ओके? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज केयरिंग फॉर द यंग वंस. Caring for the young ones. The newborn babies of mammals are weak and helpless. Their parents, usually mothers, take care of them and protect them
till they learn to look after themselves. The mothers feed their babies and protect them from various things, especially the enemies. They keep them clean. They shower their love on them. The fathers help by hunting for food and protecting the babies. The newborn babies or mammals are very weak and they are helpless. Helpless means they cannot do their own work even. So their parents look after them. Especially the mother looks after the babies and she also protect it and she learns to look. She makes that babies learn to look after themselves. मतलब कि वो उसकी रक्षा तो करती हैं, साथ ही उसको सिखाती हैं कि कैसे उसे अपना ध्यान खुद रखना है. और अपने बेबी को मदर फीड करती हैं और उनको प्रोटेक्ट करती हैं बाहरी चीज़ों से, स्पेशली किससे? एनिमीज से, मतलब शत्रुओं से. जैसे अक्सर छोटे बच्चों को बड़े जानवर जो हैं वो खा जाते हैं, तो इसके लिए वो उनको सिखाती हैं कि एनिमीज से कैसे आपको बचना है और अपनी रक्षा कैसे करनी है, और उन्हें खुद का काम करना बताती हैं कि कैसे. जैसे चिड़िया है, चिड़िया की माँ उसको बताती है कैसे उड़ना है, और काउज हैं, डॉग्स हैं, ये सब अपने पपी को बताते हैं कैसे चलना है, खाना है वगैरह, ये सब अपने बच्चों को सिखाती है माँ. और दे कीप देम क्लीन ऑल्सो, वे उसको साफ सुथरा भी रखती हैं और अपना प्यार अपने बच्चे पे लुटाती हैं. दे शार देयर लव ऑन देम मीन्स वे अपना प्यार भी बच्चे पे लुटाती हैं. और व्हाट इज द वर्क ऑफ फादर? फादर हेल्प्स मदर बाय हंटिंग फूड फॉर द बेबीज एंड होल फैमिली एंड प्रोटेक्ट द बेबीज. फादर क्या करते हैं? वो बेबी के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं. कैसे करते हैं? शिकार करके जाके बाहर से भोजन लेके आना और बेबी को प्रोटेक्ट करना. ये क्या काम, किसका काम है? फादर का. ठीक है. ये हो गया केयरिंग फॉर द यंग वंस. नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड चिल्ड्रन. नाउ दिस मच फॉर टुडेज सेशन. In next session we will discuss the exercises. I will give you exercises to write in your science copy, okay? And you have to make the diagram of the egg, okay? Now you have to read the chapter, okay? Read the chapter and learn the important facts from the chapter. Now this much for today's class. Now till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.